Hello students, very from home, a program initiated by Kanamagan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly from home in this situation of worldwide pandemic coronavirus. Before going into our academia, first I would like to give you one recent information, current information that currently by more than 24,000 patients of coronavirus, India has increased its number in the overall list, and currently India holds third rank in number of overall coronavirus patients. The first America with around 3 million, second Brazil around 1.6 million, and third India around 6,84,000 patients, and tomorrow we are going to have more than 7 lakh patients. So let's pray for those who are victim of this unfortunate condition, and let's pray for those families who have lost their child, their parents and all. So let us start with our class. Before going into our topic today, first one thing that I like to state, that is that we are planning to have your UT first, and those are planned in the month of July, and उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है यह आप लोगों तक पहुंच जाएगी स्कूल की तरफ से. आई एम नॉट हियर फॉर दैट. आई एम हियर टू टेल यू अबाउट व्हाई दीज यूटीज आर इम्पोर्टेंट. As we already know that it's like 1 or 2 months that we are continuing our studies due to this coronavirus situation, and the medium that we have adopted is the virtual classes. So at least we need to know what kind of feedback we are getting from these virtual classes, as these things are also new to us. These methods are also new to us. So for that feedback, your appreciation, your feedback is work like motivation to us. That is the incentive that will motivate us to work more, to give more. तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि स्कूल से जैसे भी हो अपने टेस्ट मटेरियल को मंगा लीजिए, ठीक है, एंड टेस्ट मटेरियल को मंगाकर जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके जब भी आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाए उस टेस्ट को दीजिए, एंड उसके बाद सबमिशन दीजिए, क्योंकि आप टेस्ट देंगे तो आपका फीडबैक हमारे लिए इंसेंटिव की तरह काम करेगा. एंड बिलीव मी, ये छोटी छोटी खुशियां ही इस टाइम में हम सबको खुशियां दे सकती हैं. लर्निंग बंद नहीं होनी चाहिए, हमें हारना नहीं है इस कोरोना वायरस से, बिकॉज सिचुएशन कैसी भी हो, वी आर द मैन, एंड ह्यूमैनिटी हैज स्टूड फॉर लाइक एजेस इन दिस वर्ल्ड, and humanity will not fall due to this pandemic. Humanity will rise again and again. So does you. आपको भी हार नहीं माननी है. No matter जैसी भी सिचुएशन है, we should continue our learning, because learn करने के लिए ही हम यहाँ हैं. अपनी क्वेरीज को, अपने क्वेश्चंस को ज़रूर पूछिए, एंड क्वेरीज एंड क्वेश्चन को पूछने के जितने भी तरीके पॉसिबल हैं वो सारे तरीके मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ. बहुत सारे तरीके आपके पास अवेलेबल हैं. आप कभी भी किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स करते भी हैं, ठीक है. तो 11th स्टूडेंट से मेरी यही अपील है दैट आई एम डैम श्योर अबाउट दैट यू गाइज might not wake up like in a proper way that you should study or not because of this situation, but believe me, this is the time, because for like 12th standard next year you are going to appear in 12th, you are having the least knowledge of your 11th standard syllabus, and these things are going to work in 12th. So अगर आप आज मेहनत करते हैं, definitely today's work will give you fruit tomorrow, ठीक है. तो ध्यान रखें, जो जो बातें मैंने कही हैं प्लीज़ उनको फॉलो करें, एंड बस इसी के साथ इस डिस्कशन को ये ख़त्म करते हैं. आ जाते हैं अपने टॉपिक पे. In previous video, we talked about the required document for the formation of company, and those two documents were first memorandum of association, and the second one was article of association. What was actually memorandum of association? Memorandum of association was a general document that was available for the public, and that holds the information of that particular company, like the name, like the registered office, like the capital, like liability, and so on. But
This article of association is not available for general public. This works for internal purpose of the business. What exactly article of association is? Article of association is the legal document that is required for the formation of company as per the section 2 subsection 5 of Indian Companies Act 2013. That is the existing legislation of our article of association. An article of association can be altered टाइम टू टाइम, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या है, टाइम टू टाइम चेंजेस किए जा सकते हैं एज पर द प्रेजेंट लॉ और द प्रीवियस लॉ. प्रीवियस लॉ की बात करूं तो पहले इंडिया में जितनी भी कंपनीज थी दोज वर यूज्ड टू बी गवर्न बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन 2013 में अमेंडमेंट के बाद ये हो गया आपका इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एग्जैक्टली है क्या? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है डॉक्यूमेंट, is the very necessary document for internal management. आपकी कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए सॉरी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है एंड ये एज पर द कंपनी लॉ ये अल्टर्ड हो सकता है. ठीक है, अब आर्टिकल ऑफ जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नेम था, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज था, वैसे ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के भी अपने क्राइटेरियाज होते हैं. सो व्हाट आर दोज क्राइटेरिया ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस? द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंप्राइजेज ऑफ इज द कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के फॉर्मेशन के रिक्वायरमेंट होता है. ये जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता और ये इंटरनल मैनेजमेंट में हेल्पफुल रहता है और ये टाइम टू टाइम ऑल्टर्ड किया जा सकता है. एंड इसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, एंड द फर्स्ट क्राइटेरिया इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स. We have learnt about the functions of promoter. हमने प्रमोटर के फंक्शंस पढ़े थे एंड व्हेन वी लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्रमोटर वहां पे फिक्सिंग ऑफ द अथॉरिटीज, फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज फॉर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे डायरेक्टर्स के साइन होते हैं. ठीक है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सबसे पहला जो कॉलम है वो है कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स का. एंड कंसेंट का टर्म का मतलब क्या हुआ? कंसेंट टर्म का मतलब हुआ परमिशन. जो कंसेंट टर्म है, बाय द मीनिंग ऑफ कंसेंट टर्म परमिशन, यानी कि जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, अब डायरेक्टर्स नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को रिकॉल कर लेते हैं. जॉइंट स्टॉक कंपनी आपकी दो तरह की होती हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक. प्राइवेट की बात करें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं 2, पब्लिक की बात करें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 7. तो जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर प्रोवाइड देयर कंसेंट फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी कि यस वी आर द डायरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड हम अपना नाम यूज करने की परमिशन देते हैं. बिकॉज जब कोई कंपनी के डायरेक्टर का नाम यूज करती है ना तो इनकी लायबिलिटी हो जाती है. ठीक है, और लायबिलिटी बिना इनकी परमिशन के नहीं होगी, तो डेफिनेटली इनकी परमिशन लेना जरूरी है. एंड कंसेंट में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के पहले फॉर्म में ही डायरेक्टर्स का कंसेंट होता है, यस वी आर विलिंगली टेकिंग पार्टिसिपेशन इन दैट पर्टिकुलर कंपनी. ठीक है, वी हैव बीन गिवन दैट पर्टिकुलर पोस्ट एंड वी हैव परचेज दैट अमाउंट ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर्स एज पर द नॉर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड द कंपनीज एक्ट 2013. ये होता है सबसे पहला कॉलम, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स. ठीक है, अब इस कॉलम के बाद जो इंपॉर्टेंट कॉलम आता है वो आते हैं सॉरी एग्रीमेंट्स. देखिए एग्रीमेंट्स यानी कि इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑल द एग्रीमेंट्स will have to be submitted, the copy of agreements will have to be submitted to the registrar of the company. That company
केम इन बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी के बनने से पहले कंपनी जितनी भी एग्रीमेंट्स में आई है, जैसे कि रेंटल एग्रीमेंट हो सकता है, जैसे कि डायरेक्टर एग्रीमेंट हो सकता है, जैसे कि रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग कुछ एग्रीमेंट हो सकता है, लैंड यूज के लिए कोई एग्रीमेंट हो सकता है, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो एग्रीमेंट्स यहाँ शो करने पड़ते हैं आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो पहला कॉलम था हमारा क्या, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स, एंड सेकंड जो कॉलम था वो था हमारा एग्रीमेंट्स। मीन जितने भी कंपनी के प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट हैं वो सारे के सारे आपको शो करने पड़ते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के सेकंड कॉलम में। ठीक है, आपने कंसेंट दे दिया, आपने एग्रीमेंट शो कर दिए, उसके बाद आप क्या करते हैं उसके बाद आप करते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं, आप उसके बाद डिक्लेयर करते हैं, आप करते हैं स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन? स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन मीन्स कंपनी ये डिक्लेयर करती है थर्ड में कि वॉट एवर द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दीज पॉइंट्स एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट इज ट्रुथ एज पर देयर बेस्ट नॉलेज। ठीक है, तो ये वाला क्राइटेरिया फिल होता है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन में, और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन में साइन होते हैं प्रोफेशनल्स के, या तो लॉयर का साइन होगा, सीए का साइन होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, कंपनी सेक्रेटरी का साइन होगा। ठीक है, तो ये लोग होते हैं जो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन में साइन करते हैं। मीन जो भी इंफॉर्मेशन एमओए एंड एओए में दी गई है उसको डिक्लेयर करना वेदर दैट इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, ये था आपका क्राइटेरिया ऑफ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन का। ठीक है, और जो लाइस क्राइटेरिया है इसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए, जो लास्ट चीज रिक्वायरमेंट होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए, जो कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो रिसिप्ट आपने जो पेमेंट आपने दिया है उस फी की रिसिप्ट लगती है लास्ट में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द डॉक्यूमेंट दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक एंड इट वर्क्स फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टरी टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस लाइन का क्या मतलब है? Can't be contradictory to MOA, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के उल्टा नहीं चल सकता। मीन जो भी ऑब्जेक्टिव, जो भी रीजंस एमओए में इंफॉर्मेशन दी हुई है उन्हीं इंफॉर्मेशन के साथ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चलना पड़ेगा। अगर ये सिचुएशन ऑल्टर्ड हुई, कॉन्ट्राडिक्टरी हुई तो कंपनी फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो वहां पे क्या, दैट इंफॉर्मेशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टरी to MOA, and the first criteria in article of association is the consent of proposed directors. Means the directors those has been appointed, they provide consent that they permitted to use their name as the director of that particular company. After that, all the pre-existing agreements that company came to before its incorporation is included in the article of association, and after that declaration is done by professionals like CA and CS, and at the last the receipt of fee is attached in the article of association. ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद जो टॉपिक है वो है आपका फंक्शन ऑफ प्रमोटर। हम प्रमोटर के फंक्शन की बात करते हैं तो प्रमोटर डज नॉट होल्ड अ लीगल पोजीशन इन कंपनी। Promoter cannot be paid profit too, but promoter holds a very fiduciary position in the company. Fiduciary term की मैं बात करूँ, what is a fiduciary term?
Fiduciary term means a very responsible position. In that he can be he can be given pre-existing या pre-incorporated expenses to for the promotion of company. यानी उसको प्रमोशन से पहले के एक्सपेंसेस दिए जा सकते हैं, लेकिन उसकी कोई लीगल अथॉरिटी नहीं होती ऑन पेपर्स. ठीक है, तो ये था आपका फंक्शन, ये था आपका पोजीशन ऑफ प्रमोटर इन अ कंपनी, कि ही डजंट होल्ड द लीगल पोजीशन इन अ कंपनी ऑन डॉक्यूमेंट्स. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इन टॉपिक्स को यहीं ख़त्म करते हैं. ठीक है, वेरी वेरी थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ, एंड यूटीज का ध्यान रखेंगे. अभी से स्टार्ट करेंगे तब जाके आप 15-20 दिन में अपने आप को अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे. एंड फॉर द BST इट इज़ माई हाईली रिकमेंडेशंस टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस, बिकॉज हमें इस तरह से क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे हमको डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस. आपको क्वेश्चन मिलेंगे केस स्टडी के फॉर्म में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के फॉर्म में. एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यू गाइस कैन सॉल्व ओनली इफ यू विल गो थ्रू ऑल द प्रिंसिपल्स. तो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ.